Hello dear students, we have started with the nitrogen cycle, and in last lecture we have discussed the first step of nitrogen cycle, that was nitrogen fixation. 5 steps in nitrogen cycle के, first है nitrogen fixation, second है nitrification, third है assimilation, fourth ammonification and fifth is denitrification. In the last lecture we have completed with the first step, that is nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज N2 is converted into ammonia NH3 and in some cases it is converted to ammonium that is NH4 with the help of the microorganisms like rhizobium, cyanobacteria, diazotrophs, etc. In this lecture we will discuss remaining steps. Among them the second step is nitrification. नाइट्रिफिकेशन यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द ग्राउंड फर्स्ट कंबाइन अमोनिया विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्राइट्स. तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है दैट इज NH3, इसका कन्वर्जन होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में. ओके, तो दिस अमोनिया NH3 इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन and converts that ammonia into nitrite. Nitrite means NO2. हमने लास्ट लेक्चर में देखा नाइट्राइट और नाइट्रेट. नाइट्राइट it is NO2 and nitrate it is NO3. Okay, so this is done with the help of the bacteria like nitrosomonas, nitrobacter. Okay, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, nitrosomonas and nitrobacter. Then another group of nitrifying bacteria convert this nitrite NO2 into nitrates that is NO3, which help the green plants or which green plants can absorb and use. तो कुछ plants ये directly ammonia consume करते हैं, कुछ plants ये nitrite या nitrate use करते हैं. Okay, plants or animals depend. So what happened in this step, nitrifying bacteria in soil combine ammonia with oxygen. Nitrifying bacteria like nitrosomonas and nitrobacter, so they combine with the oxygen and form the nitrite. Further nitrifying bacteria convert this nitrite to nitrate and it is used for the plant. ये reaction में दिखाया है, NH3 get converted into NO2 and then it get converted into NO3. So that is the second step, nitrification. Okay, उसके बाद है third step, assimilation. Assimilation में क्या होता है, assimilation means whatever up till now it has been produced. Okay, whatever product is been produced or whatever product is made is now used by the plants. Okay, so that is the assimilation. Actually यही हमने last step में देखा कि plant absorb nitrates and grow, उसी को यहाँ पर elaborate किया है assimilation. तो nitrogen assimilation, in this process inorganic nitrogen in the form of inorganic nitrogen मतलब N2 atmospheric nitrogen. Okay, तो ये हमने previous lecture में देखा inorganic नाइट्रोजन फॉर्म्स कौन से है और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म्स कौन से है. तो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन ये एक ही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2. इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स. तो ये प्लांट्स यूज करते हैं थ्रू द रूट्स एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, सो नाइट्रेट्स are first converted into ammonia which combines with the organic acids to form amino acids. अब यहाँ पर क्या होता है, nitrogen compound in the various forms like ammonia, nitrite, nitrate are taken up from the soil. जो soil में है वो they are taken from the soil by the plants and are then used to form the प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स. ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट होती है कि प्लांट्स या एनिमल्स वो नाइट्रोजन के फॉर्म्स लेते हैं
और अपने जो इसेंशियल या फिर बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो तैयार करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब इसेंशियल एलिमेंट्स वो फॉर्म करते हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ओके, सो दिस इज द known as assimilation process. Next step is ammonification. Ammonification में क्या होता है? It is the process of releasing ammonia by certain microorganisms utilizing organic compounds derived from the dead organic remains of plants and animals and excreta of animals. And this is done by the microorganisms like actinomycetes and bacilli. उसमें से कौन से हैं? Bacillus ramosus, Bacillus vulgaris and Bacillus mesenterilis. अब यहाँ पर होता क्या है अमोनिफिकेशन में? जो भी अमोनिया है, ओके, मीन्स हियर व्हेन एनिमल एक्सक्रीट, जब एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट, ओके, एनिमल्स और प्लांट्स, एनीवन, व्हेन एनिमल्स एक्सक्रीट or die, or when plants die, their nitrogen which is present in any form, okay, like nitric acid, not acid, nitrate, nitrite, ammonia, so in any form which is present, it enters into the soil, and this bacteria it converts it back into the ammonia. तो यहाँ पर जो नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, ये जो प्रोसेस, ये जो हमने देखे थे कन्वर्जन्स, इनका फिर से बैक कन्वर्जन होता है इनटू द अमोनिया. ओके, सो दैट इज दिस प्रोसेस एंड इट इज कैरिड आउट बाय द एक्टिनोमाइसिट्स एंड बैसिलस. सो इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अमोनिया बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? From the excreta, okay, from the excrete, from the waste product, or after the death of the animals and plants, it is returned back to the atmosphere. अब ये साइकिल है, तो यहाँ पर गिव एंड टेक की प्रोसेस चलती है. ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिया है, उसका कन्वर्जन डिफरेंट फॉर्म्स में किया है, और जब उसके इसेंशियल प्रोडक्ट तैयार हो गए, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इसेंशियल प्रोडक्ट, जो वेस्ट निकल रहा है या फिर जब प्लांट्स या एनिमल्स ये कील हो जाते हैं, देन इट रिलीजेस बैक नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ये से साइकिल चलती रहती है एंड इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट दिस साइकिल, टू कैरी आउट दिस साइकिल जस्ट फॉर प्रॉपर और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. तो ये थी अमोनिफिकेशन की स्टेप. अमोनिफिकेशन में हमने देखा कि नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में फिर से एंटर हो चुका है बाय द एक्सक्रीटा और आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. द लास्ट स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? इट कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इन द सॉइल टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, रिप्लेनिशिंग द एटमॉस्फेयर. जो हमने यहाँ पर देखा, ओके, अमोनिफिकेशन में जो देखा वही एलाबोरेट किया है डीनाइट्रिफिकेशन में. तो देखिए, दिस नाइट्रेट्स इन द सॉइल दे रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर इन दिस डाइनाइट्रोजन फॉर्म. तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन, इट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स बैक into the largely inert nitrogen gas. Nitrogen is the inert gas. So in this process, nitrate is converted back into the gaseous nitrogen and denitrifying bacteria use. अब ये प्रोसेस होती कैसी है? ये प्रोसेस कौन कैरी आउट करते हैं? लाइक बैक्टीरिया, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंट्स, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंट्स, सुडोमोनास एरोजिनोसा. तो ये बैक्टीरिया कैरी आउट करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. देखिए यहाँ पर NO3, that is nothing but nitrate, then nitrite, nitrous oxide, nitrous oxide, nitrogen oxide, nitrous oxide is back converted into the atmospheric nitrogen. तो जब हम बोल रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन, तो एक्चुअली ये रिएक्शन कैरी आउट हो रही है डीनाइट्रिफिकेशन में. अब ये होती क्यों है? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस? होती क्यों है और ये कैसे होती है? बैक्टीरिया कैरी आउट करते हैं, नो डाउट,
but what is actually reason or how the mechanism takes place. Denitrifying bacteria live deep in the soil and in swampy means deeply रहते हैं, soil के एकदम deep area में रहते हैं. Denitrifying bacteria, okay, so denitrifying bacteria, they live deep in soil where conditions make it difficult for them to get oxygen. अब यहाँ होता क्या है, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो दिस आर दी प्लांट्स और क्रॉप्स, और जो ब्लूइश रीजन दिखाया है नीचे, जो ब्लूइश कलर दिखाया है, इट इज दी वाटर. ओके, जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या फिर वाटर का एक्यूमुलेशन सॉइल सरफेस पे ज़्यादा हो जाए, तब क्या होता है, दिस बैक्टीरिया आर अनेबल टू गेट दी ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन नहीं ले पाते क्योंकि ये पूरा जो सरफेस है इट इज़ कम्प्लीटली बीन कवर्ड बाय दी वाटर. तो ये बैक्टीरिया, ये मतलब कौन से बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये ऑक्सीजन नहीं ले पाते. तो ये ऑक्सीजन को ऑप्शनल क्या ढूंढते हैं, दे यूज दी नाइट्रोजन. ओके, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फॉर्म यूज करते हैं अंडर अनएरोबिक कंडीशन. पूरा वाटर सरफेस से वो कवर हो चुका है तो ये अनएरोबिक कंडीशन डेवलप हुई. ओके, सो दिस कंडीशन मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट द ऑक्सीजन. द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज नाइट्रेट एज एन ऑप्शन टू ऑक्सीजन, लीविंग फ्री नाइट्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट. तो वो नाइट्रेट यूज करते हैं और नाइट्रोजन रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट एंड इट रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फियर. Then here nitrogen cycle is closed. Okay, that is the condition. Denitrifying bacteria ये deep एकदम अंदर रहते हैं सॉइल के, बहुत ही डीपली रहते हैं. तो बेशक सरफेस के ऊपर पानी बहुत सारा है लेकिन वो पानी से दैट सॉइल सरफेस से कंप्लीटली कवर हो चुका है, कंप्लीटली कवर हो गया है, यानी कि नीचे अनएरोबिक कंडीशन है. अनएरोबिक कंडीशन में इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन दे यूज द नाइट्रेट एंड रिलीज द नाइट्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट विच इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड हियर नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड. तो यही दिखाया है यहाँ पर. नाइट्रेट दैट इज NO3, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दे लिव डीप इन द सॉइल एंड यूज नाइट्रेट एज एन अल्टरनेटिव टू ऑक्सीजन, making a byproduct of nitrogen gas, and nitrogen in atmosphere closes the nitrogen cycle. जब नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल ये क्लोज हो जाती है. Other ways that nitrogen return to the atmosphere is emission from the combustion and volcanic eruptions. They also releases the nitrous oxide gas. इस तरीके से भी नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. नेक्स्ट इज दी, हमने एक्चुअली क्या सीखा है नाइट्रोजन साइकिल में, व्हाट वी हैव स्टडीड. देयर इज व्हाट वी कंक्लूड, thus there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecules in the soil. So from the atmosphere it enters in the soil and water, which get converted to complex molecules in living beings and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. So up till now we have discussed, जो भी हमने processes देखे वो बहुत simplified manner में यहाँ पर लिखा है. So that is all the nitrogen cycle. अब इसे summarize करते हैं with the help of the diagram. सबसे पहले atmospheric nitrogen, it starts from this center corner nitrogen N2, it is the atmospheric nitrogen. पहली स्टेप है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है इनटू दी अमोनिया और अमोनियम NH3 एंड NH4 जैसे कि मैंने बताया था. तो पहली स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू दी अमोनिया और अमोनियम. आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में ये अमोनिया और अमोनियम का कन्वर्जन होता है इनटू दी नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. ओके, सो दिस इज द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस.
अमोनिया का कन्वर्जन हुआ है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में, दैट इज द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. एंड आफ्टरवर्ड्स दिस एसिमिलेशन है उसके बाद. ठीक है, एसिमिलेशन में हमने देखा कि अब तक जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ है इट इज़ बीन यूज्ड बाय द प्लांट्स. नेक्स्ट स्टेप इज अमोनिफिकेशन. तो अमोनिफिकेशन में फिर से इन सब का कन्वर्जन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है. मीन्स व्हाट, दिस नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज बैक कन्वर्टेड इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच इज नोन एज अमोनिफिकेशन. ओके, इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन. एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर ये भी कन्वर्ट होता है अमोनिया या अमोनियम में, दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन. एंड एसिमिलेशन में यूज किया जाता है. सो दिस इज द साइकिल विच ऑलरेडी वी हैव सीन इन द स्टेप्स. तो ये सब है. तो टर्म्स अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन. अमोनिफिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of nitrates and nitrite into ammonia is called as ammonification. ammonification मतलब क्या? अमोनिया तैयार हो रहा है. तो किससे तैयार हो रहा है? through the not through, by the nitrate and nitrites. So conversion of nitrate and nitrite into ammonia is called ammonification. Second, nitrification क्या है? Conversion of ammonia into nitrites and then nitrate is called as nitrification. Opposite of ammonification is the nitrification. So that is all about the nitrogen cycle. And here we have completed our syllabus for soil, air and water microbiology. I hope you might have understood this lecture. If you have any doubt regarding this lecture, you can ask me in comment section. Thank you.